Hello childrens, today we are going to discuss our next chapter that name is material in daily life. Okay, in this chapter we have some key learning points like material and its type, synthetic fiber, plastic and environmental problems. Okay, as you know, we use many materials in our daily life. Firstly, we have to discuss material and its type. We know many materials in our daily life we have to use. Some are made of natural material such as wood, cotton, stones and clay. Okay, and some of made up of men. For example, glass, paint, steel, cement, thermocol, plastic, nylon and many other things. Okay, now we read about fibers. The fibers made by human beings in laboratory by using chemical are called synthetic fibers or man-made fiber, or they can also be known as artificial man-made fibers. Is it clear to everyone? ओके, दे आर नॉट नेचुरल. बेटा ध्यान से सुनेंगे सभी. दे आर नॉट नेचुरल. ये ऐसे पेड़ पौधों से नहीं मिलते. वी हैव टू क्रिएट दैम. ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर. क्लियर? नाउ लुक एट दिस नेकलेस. अब सिंथेटिक फाइबर इज pretty much like this. आपने देखा सिंथेटिक फाइबर इज pretty much like this. अब सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, जो एक यूनिट होती है. ओके, जो एक यूनिट होती है. फॉर एग्जांपल आपको मैंने नेकलेस दिखाया, इसकी जो एक यूनिट है. ओके, नोन एज व्हेन दिस मोनोमर continuously repeated again and again it forms like a chain, then it is known as polymer. Clear? देखो, अगर इस एक यूनिट की बात हम करते हैं, ठीक है, अगर एक यूनिट की हम बात करें, जो आपके नेकलेस में एक यूनिट है, दैट इज़ मोनोमर. और जब ये एक यूनिट यानी कि एक ही जो मोती है बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन इट इज़ कॉल्ड अ पॉलीमर. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. राइट, सो बेसिकली ऑल द सिंथेटिक फाइबर दैट यू गेट आर पॉलीमर्स एंड दैट one unit repeatingly, that is monomer. Okay, so all the synthetic fiber are almost synthetic fiber you see basically polymers. जितने भी आप मोस्टली देखते हो सिंथेटिक फाइबर, दे आर बेसिकली पॉलीमर्स. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ओके, जो पॉलीमर शब्द है बेटा, ये आपके 2 ग्रीक वर्ड से आया है. ये जो पॉलीमर है, पॉली एंड मर. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट. क्लियर? और एक यूनिट को हम बोलेंगे मोनोमर. ओके, नाउ देयर इज सम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. First is rayon. Known as artificial silk. Although it is man-made fiber, but it is obtained from some natural sources. It is prepared by wood pulp. किससे बनता है? wood pulp से. And wood pulp is natural, right? When wood pulp is mixed with the chemical, it forms rayons. What it forms? रेयॉन्स. और इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस इसके बेटा आपने देखा होगा, कारपेट, बेड शीट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ों में इसको काम में लाया जाता है. इट इज़ चीप. सिल्क मीन्स इट्स लुक लाइक सिल्क.
Okay, listen carefully. It is cheap silk. That means it is look like a silk, but it is not a silk. All right. Now moving on, nylon. Nylon is a very strong fiber. It is so strong and stronger as a steel wire, and it is used for rock climbing. Next thing, it is also a synthetic fiber, but it is used without using any natural raw material. There is no natural raw material can be found in nylon. There is no natural material can be found in nylon. Then the question is how it is prepared from. Okay, it is prepared from coal, water and air. Although I understand coal, water and air are natural, but it is actually not a raw material as such. Okay, it's not like something obtained from plants or the animal. जो कोल, वाटर एयर है ये कोई नेचुरल नहीं है. इट मीन्स कि ये कोई हमें प्लांट्स या एनिमल से नहीं मिल रहा है. ओके, सो नायलॉन इज एब्सोल्युटली टू बी अ मैन मेड. क्लियर? एन एग्जाम्पल ऑफ इट: socks, ropes, tent, toothbrush, car sheet, belt and curtain, etc. Next is polyester. Another synthetic fiber. इसमें बेटा रिंकल नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझेंगे हम. नो रिंकल, इट मीन्स देयर इज़ नो रिंकल इन दिस फाइबर. लाइक अगर आप कॉटन की शर्ट लेते हो, आपने देखा ना, आप उसे प्रेस करते हो, बट इफ़ यू आर यूजिंग ए पॉलिस्टर शर्ट देयर इज़ नो नीड टू प्रेस इट, बिकॉज उसमें रिंकल ही नहीं होगा और ये ईजी टू वॉश भी होता है. क्लियर? पॉलिस्टर के साथ आप अलग अलग चीज़ों को मिला सकते हो, जैसे पॉलीकॉट. यहाँ पर पॉलीकॉट है तो पॉली एंड उसके साथ क्या मिलाया गया? कॉटन. पॉलीवुल, पॉली एंड वुल. क्लियर? यूजेस क्या हैं इसके? ड्रेस मटेरियल, साड़ीज़, कर्टन, क्लॉथ्स एक्सेट्रा को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. नाउ यू हैव टेरिलिन. अब जो एक टेरिलिन मैं आपको बता रही हूँ, टेरिलिन it is quite popular polyester. Which is extremely used in fine fiber. It can be woven into yarn. Okay, so it is used pretty much a lot of places. Teriline is used. Clear? Next one is PET. PET is a type of polyester. You seen in bottom of the plastic bottles. बेटा आपने प्लास्टिक की बॉटल्स देखी है ना, तो प्लास्टिक की बॉटल में बॉटम में जब आप उसको अपोजिट करके देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है PET 1, PET 2, PET 3. तो ये क्या बताती हैं? उसके PET यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बताती हैं, उसकी एक क्वालिटी को बता रही हैं, शो करती हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, एक्रिलिक. Acrylic is used in sweater or shawl. Sweater and shawl. It's like a wool, and again it is a cheaper version of wool. Okay, it is not wool, but it is used as a wool. Clearly? Listen it. It is a cheaper version of wool. ये wool का एक cheaper version है. It is not wool. ये एक wool नहीं है, but it is used as a wool, although it is not made by natural wool. Is it clear now? Okay, next is there is some advantages of synthetic fiber and some are disadvantages of synthetic fiber. So firstly we have to talk about some advantages of synthetic fiber.
चीप, इट्स चीप, ड्यूरेबल, ईजी टू वॉश, अवेलेबल इन वैरायटी इन कलर्स। सस्ता होता है, ड्यूरेबल होता है, ईजी टू वॉश करने में ईजी होता है और आपको अलग अलग कलर्स में भी आपको मिल जाता है। एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैचेस फायर, जो सिंथेटिक आपके कपड़े होते हैं वो जल्दी से क्या करते हैं, आग को पकड़ लेते हैं एंड मेल्ट्स ऑन हीटिंग, और जैसे ही उसमें हीट लगती है तो वो मेल्ट होना यानी कि पिघलना शुरू हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल इफ़ यू आर कुकिंग और समथिंग, यू शुड नॉट वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लास्टिक। Plastic is also a polymer. Here, first keep in your mind, plastic is also a polymer. When there is one monomer unit which continuously repeated, ठीक है, that is plastic. Now there is a plastic article are available in all possible shape and size. आपको हर शेप एंड साइज़ में ये मिल जाता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। एज़ यू नो कि प्लास्टिक का आप किसी ना किसी तरह से यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते ही हो। दे आर ईजिली मोल्डेबल, ओके, आप इसको मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप एंड साइज़ दे सकते हो, एंड दे आर क्वाइट हैंडी। और ये क्या होते हैं, क्वाइट हैंडी, जैसे कि लाइक अ बॉटल है, बॉटल को आप हाथ में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हो। क्लियर? इट कैन बी रिसाइकिल, यूज एंड कलर। देन इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ओके, अब यहाँ पर बेटा कुछ टाइप्स भी हैं प्लास्टिक के, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। देयर इज़ टू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, thermoplastic, if you heat it, then what happens? It deform as a, it can be different form, means it can be different form and you can bend easily. So basically this type of plastic known as thermoplastic. Okay, and what is thermosetting plastic? It means once you have molding it, they cannot soften by heating. आप इसको हीट करते हो, they cannot soften. Okay, those are known as thermosetting plastic. Clear now? Okay, we are moving on. Characteristics of plastic. There are some characteristics of plastics, and characteristics of plastic is also divided into two basic parts: positive aspects and negative aspects. Okay, then firstly we have to talk about positive aspects of plastic. First is लाइट वेटेड है, ड्यूरेबल है, लोअर प्राइस है, एंड नॉन रिएक्टिव है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्लियर? अब जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक पॉल्यूशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता है। इट मीन्स, और ये कॉज कैसे होता है, होता कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, जब प्लास्टिक को जला देते हैं, टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। आप अगर प्लास्टिक को फेंक रहे हो तो उसको काफ़ी साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। ओके, थ्रोइंग प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज़, कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक को जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें भी थ्रो कर देते हैं। एंड प्रिवेंटेड, देयर आर 5 R फॉर प्रिवेंटेड प्लास्टिक causes. Then first is reduce, reuse, recycle, recover and refuse. ओके, और बेटा आपको ये रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़ आपने अपनी पिछली 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 7th में और 6th में। सो आई होप कि सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।